Hello, students. Hello, Good ma'am. afternoon. I have joined Good from afternoon, another ma'am. device also. Can you see me? No, ma'am. Wait, No, ma'am. because my laptop video is not working properly. Wait. Now Yes, ma'am. Yes. Visible. I'm visible now. Is there any echo? No, ma'am. No, ma'am. Okay, because what happened when we joined from two devices na? In Google Meet there is a echo, but I think Microsoft is not facing this problem. It's good then. Because you also feel awkward when I'm speaking and you cannot see me. So now 73 participants are there. My humble request, if internet connectivity is good from your end, please switch on your video. That's good. So I can also feel that I am not talking to a wall, but the live faces, है ना? अच्छा मोबाइल में थोड़ा डिफरेंट आता है नहीं? आज मैंने मोबाइल से किया तो इसमें कैमरा बैकवर्ड कैमरा ऑन करने का भी ऑप्शन है। अच्छा I also first time joined from the mobile. It's a different view. Why only few students? So, shall we begin? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. At the last lecture, what we discussed? My last lecture. Peer pressure. Peer assessment. Peer assessment. Peer We were assessment. Peer discussing assessment. peer assessment. Okay. Please tell me what do you understand by peer assessment? Assessment which is taken by the same group of students which are in the same class. Okay, which are in the same class. Okay, anyone else? Feel free to explain. You can give the answer in either Hindi also. Not necessary that you can give answer only in English. Main purpose is tell me what's your understanding about the peer assessment. Taking the responsibility. मतलब teachers give responsibility, student take responsibility. Okay. Only Honoring Mariam. of authority. Only Mariam Hello, was ma'am. there in last lecture. Ma'am, Vaibhavi here. Yeah, Vaibhavi. Ma'am, here we assess by given certain criteria. A fixed criteria is there for assessment. PSS or peer assess?
वैभवी ना हाँ मैम, हाँ हाँ। हाँ, who assess to assess the peer by given certain criteria, but the criteria is given by the teacher. teacher? Okay, criteria is given by the teacher. Okay, because whenever na you give the answer, because this is very technical subject, so we should stick to the some technical words. You know, peer means assess by the peer. Okay. Okay, I'll take care of it, ma'am. नहीं well try. क्या नाम था मैं भूल गई वैभवी. I am just correcting you so that whenever in future, even though you give your assessment, so you will be aware of that how to write the answer or how to explain it. है ना? Because when we say that we, now you are not the student. Are you a student? We are student teacher 50-50. We are student Ah, teacher. ah. So you are student teacher. So many a times what happen, you will think from the side like a student, and again in the same time you also think like a teacher to give the answer of many question, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर देने के लिए आप स्टूडेंट की तरह सोचते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर देने के लिए यू थिंक लाइक अ टीचर, है ना? सो आप Like a dual split- role, हाँ हाँ, तो आप स्प्लिट dual role पर्सनालिटी play की कर, तरह मैम. हाँ हाँ नहीं, not it's not like split personality, please don't mix up with that. It's about the role, because you are not simply a student. What's the term used for you people? Student teacher. So here Teacher. we are, here we are giving you the training to be a teacher, है ना? So many a question, when to answer that question, many a times you have to think like a teacher. Now you have to start like that. कि आप आधे टीचर तो बीएड में आ गए हो तो बन गए हो, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years आप फुल फ्लेज टीचर बन जाओगे, है ना? तो व्हेन यू से दैट वी डिनोट्स व्हाट, अभी वैभवी आपने जो आंसर दिया ना, व्हेन वी असेस, तो वी मींस व्हाट, टीचर और स्टूडेंट. अब मतलब अभी मैंने वी बोला तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोला था. हाँ हाँ, दैट इज राइट. व्हेनेवर वी आंसर ना, तो स्पीक लाइक व्हेन द स्टूडेंट असेस ईच अदर, है ना वैभवी? गुड, चलो हाँ, ध्यान से ठीक. किया तो थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हुआ, है ना? ओके, एनीवन एल्स? बस इतने बच्चे का वीडियो ही ऑन रहता है. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? फिर मैं नाम के साथ बोलना शुरू करूंगी. हाँ? Only 7 to 8 student have like उनका मैम video on. नेट इज मैम एंड आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, ब्रेक हो रहा है आवाज. My voice is not clear. क्लियर है मैम. मैम इट इज क्लियर बट थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ था. ब्रेक हो रही है मैडम. Okay. Now is it clear now? यस मैम. यस मैम. Okay. So we were discussing about the peer assessment, है ना? Many of you have tried to give the answer. What else you understand? Can you elaborate with the help of one example? बहुत अच्छे पॉइंट आपने बोले ना कि they assess with the predetermined set of criteria. तो who decide this criteria? Teacher. तो टीचर का नेक्स्ट रोल क्या होगा? मैम ऑब्जर्व करना कि वो जो क्राइटेरियाज है उस हिसाब से स्टूडेंट्स असेस कर रहे हैं कि नहीं. डायरेक्ट स्टूडेंट असेस कर देंगे. डोंट यू थिंक दैट वी नीड असाइनमेंट या कुछ देंगे? हाँ यस, चलो मिली ने एक पॉइंट निकाला, लेकिन उससे पहले हम वी विल डिजाइन दी एक्टिविटी, है ना? तो मिली, यू आर राइट. जैसे कि मैंने इन माय लाइक प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द असेसमेंट फॉर लर्निंग, we have to think about the activities, we have to plan our learning experience accordingly, है ना? So that we can do the assessment, mainly the formative assessment, है ना? तो हमको ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बट कैसी एक्टिविटी करनी है हम लास्ट में देखते हैं.
लेकिन यस ये बात तो है कि वी हैव टू प्लान अ एक्टिविटी, है ना, फॉर पीयर असेसमेंट। तो कहाँ कहाँ पे हम पीयर असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, देन बीइंग अ टीचर वी डिसाइड द क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और दैट पर्टिकुलर लर्निंग, है ना, वो लर्निंग को इवैल्यूएट करने के लिए वी डिसाइड द क्राइटेरिया। देन क्लियर कर दिया आपने, आपने डिसाइड कर दिया क्राइटेरिया, उसके बाद आप क्या करोगे? स्टूडेंट का वर्क आएगा, स्टूडेंट्स विल स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटी, मतलब वो Student असेस बिना- करना स्टार्ट कर देगा। कैसे असेस करना स्टार्ट करेगा? हमने तो डिसाइड मैम किया। पहले स्टूडेंट को हम यानी instructing इंस्ट्रक्ट करें। करेंगे Yes, जो we need क्राइटेरिया to, हाँ, we need to orient them, we need to tell Explain them, करेंगे, हाँ। elaborate them, है ना, regarding the criteria which we have decided, है ना। और जो भी चीज है जो हम learning outcomes measure करने वाले हैं, how that particular learning outcomes is going to be measured, वो हमको उनको explain तो करना पड़ेगा ना स्टूडेंट, अदरवाइज उनको कैसे पता चलेगा कि कैसे इवैल्यूएट करना है ना। Then we will implement the activity and then the student will start the working on that. Clear? तो peer assessment का simple meaning क्या है? When the work which is done by the one particular student is assessed by their own classmates or the peers, and when they provide the feedback, है ना, और we need to also orient the student that how to give the feedback, है ना। हमें उनको ये भी तो ओरिएंट करना पड़ेगा ना कि फीडबैक कैसे दिया जाता है क्या, या फिर जैसे कि ग्रुप एक्टिविटी करवाई और एक बच्चा खड़ा होके बोलेगा मैम ये बच्चे ने अच्छे से नहीं बोला था, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, उसको ये नहीं आता था। अगर हम उनको ओरिएंट नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही फीडबैक देंगे ना। ओरिएंटेशन इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोई ओरिएंटेशन को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा है। हर जगह पे हाँ, ओरिएंटेशन इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि बच्चे फीडबैक देंगे तो हमको उनको बोलना चाहिए कि कैसे फीडबैक देना है? यस मैम Yes, Yes, है ma'am. कि नहीं? जैसे कि कोई बच्चा प्रेजेंटेशन कर रहा है या ग्रुप डिस्कशन कर रहा है ना, और वो आइडिया अच्छे ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो कोई और बच्चा स्टूडेंट खड़ा होके ये बोल देगा कि मैम इसको आइडिया प्रेजेंट करना नहीं आता है। इज दिस द राइट वे टू गिव द फीडबैक? नो मैम No. और No. इज दिस द No. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? No. No. विल इट No, फैसिलिटेट? मैम, बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। डिमोरलाइज हो जाएगा ना। तो फीडबैक देने का भी एक तरीका होता है, हाउ टू गिव द फीडबैक। सो बच्चे जैसे कि ये जो है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, जिसमें हमने देखा है कि फीडबैक प्लेज द मेजर रोल, whether it is given by the teacher, whether it is given by the peers like you, है ना, और आप जब अपने आप को फीडबैक देते हैं तो फीडबैक प्लेज द मेजर रोल। तो जब हम पीयर असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट निग्लेक्ट द फीडबैक पार्ट, इट इज ऑल्सो देयर, है ना। तो जैसे कि फीडबैक कैसे देना है वो भी हमको उनको बोलना पड़ेगा, एंड वी ऑल्सो नीड टू ओरिएंट अवर स्टूडेंट, है ना। किसी ने बोला था कि कई बार क्या होता है कि फीडबैक देते हैं, हाउ पॉजिटिवली यू आर टेकिंग द फीडबैक, बच्चे उसको कितना पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो हमें ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि व्हेन वन स्टूडेंट इज गिविंग फीडबैक टू द अदर स्टूडेंट, it should be given in a constructive way and that feedback should be received in a positive manner. तो ये दोनों चीजें हमको बच्चों को सिखानी पड़ेगी, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना असेसमेंट फॉर लर्निंग में। क्लियर है ना। तो वेदर इट इज पीयर असेसमेंट तो उसमें Hello. भी तो आएगा। यस मैम रिंकी शुक्ला। हाँ, यस मैम मेरा डाउट यस मैम मेरा डाउट ये है कि जब पीयर असेसमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें उसके बाद भी टीचर अगर रिंकी, व्हाट हैपेंड? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ गए चली Yes, गई ma'am. रिंकी?
रिंकी आई थिंक इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी होगा। हाँ नेट डिस्कनेक्ट इश्यू हो होगा। गया। ओ ओके कोई बात नहीं, जब वो ज्वाइंट होगी आई विल सॉल्व दी डाउट। ओके तो ये सारा तो हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन। Is my screen is visible? Yes, it is visible. Yes, ma'am. हेलो। हाँ यस रिंकी। यस मैम, एक्चुअली मेरा नेटवर्क हाँ इशू होगा, शायद मैं भी नेटवर्क। लेफ्ट हो हाँ गया। हाँ यस यस मैम बोलो। मेरा यही डाउट है कि पीयर असेसमेंट हम दे रहे हैं, उसके बाद भी टीचर एसेस तो करेगा वो, तो Yes. उसमें टीचर का टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं होगा, टाइम कंजम्पशन At what sense? इन मींस अगर वो डायरेक्टली टीचर वो एसेस कर सकता है तो पीयर असेसमेंट की नीड क्या है? क्या मींस peer टीचर assessment डायरेक्टली period? वो हाँ चीज but it is the why we need the peer assessment सबसे पहले, यस मैम, है ना। That's your basic question. यस मैम। Rinki, see this slide. What's written here? हमने बोला था three main things is very important. Where the learner is going, where the learner is now, and how can the learner gets there. इतना तो सबको समझ में आ गया था, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. So where the learner is going, है ना, तो वो उनको पता होना चाहिए। तो there are the different ways. Either we directly tell them the objectives, learning outcomes, कि ये learning Yes. outcomes होने चाहिए। The another way, the most important way is that involving the students in a evaluation process, sharing them the responsibility, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था रिंकी, कि जब ये पीयर असेसमेंट होता है ना, the important thing we involve the students and making them responsible for assessing the work. किसी का बहुत एको आ रहा है प्लीज। हाँ ये we had already discussed in our last class कि जब हम उनको बोलते हैं कि, मैंने एक एग्जांपल भी लिया था शायद आपको याद हो तो, एसएस वाले टीचर का, कि जहाँ पे टीचर इज इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स इन अ असेसमेंट पार्ट, तो वो क्या होता है, दे आर टेकिंग द असेसमेंट वेरी सीरियसली। अभी वो किस तरह से सोचना शुरू करेंगे एज ए असेसर। तो मुझे सपोज किसी को ग्रेडिंग देना है, तो फर्स्ट तो मुझे पता होना चाहिए दैट हाउ शुड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड, है ना, वो रिक्वायरमेंट क्या है। सो स्टूडेंट विल लर्न दैट थिंग्स कि क्राइटेरिया ये है। तो जब वो व्हेन दे आर like reading the criteria, when they are judging one particular student on the basis of the predetermined criteria, they are also understanding the criteria which is set by the teacher, है ना। देखो, to better understanding assessment criteria, तो वो assessment criteria is ultimately going to help the students to learn that particular concept in depth when they are playing the role of as a assessor. Clear Rinki? यस मैम। है ना। now what about that teacher का time waste होगा कि नहीं होगा, it depends on how teacher is implementing this peer assessment scheme. ठीक है, तो peer assessment कब implement करता है, कैसे implement करता है। लेकिन ज्यादातर जैसे कि ये तुम्हारे दिमाग में ये जो आया ना रिंकी, यस मैम। ज्यादातर टीचर क्या होते हैं, वॉट एवर, एज आई टोल्ड यू इन अ वेरी बिगिनिंग ऑफ माई क्लास, these all are very new concept which are being incorporated in a teacher learning process. And टीचर को ना जब भी कोई न्यू चेंज आता है तो दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस कि कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा। लेकिन अगर सोचो रिंकी, लर्निंग Yes, हो ma'am. ही नहीं रहा है, लर्निंग हो ही नहीं रहा। यस मैम। It's only the responsibility of teacher to just check that paper pencil test, यस मैम। नो मैम। है ना। वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या है
we has to like give them the, well, we have to put them in such a situation where they can learn. So that part is very important, है ना. और जैसे कि टीचर स्टूडेंट पीयर असेसमेंट करने के बाद भी टीचर को असेसमेंट करना होता है ना. सो जैसे कि मैं अपना बीएड का ही एग्जांपल दूं, in all the B.Ed colleges, teacher education institution, these things are being done long back. Peer assessment and self assessment. आप जब थर्ड सेमेस्टर में आओगे ना, at Yes, that ma'am. time you are doing the same things. कैसे होता है कि जब ओके, आप लोग तो स्कूल करके आए हो, बीएड के बच्चे आते हैं लेसन देने के लिए. Yes, देखा ma'am. होगा, Yes, आप ma'am. सब स्कूल में आए थे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. प्रोसीजर, सिर्फ वो अकेले आते थे? नहीं मैम, No, उनके ma'am, कोई ma'am भी टीचर्स भी होते थे इससे साथ मैम में. उनको सुपरवाइज भी करते थे. उनको सुपरवाइज करते थे. तो सिर्फ वो एक मैम या टीचर जो सुपरवाइजर होते थे वही आते थे क्लास में? नो मैम, स्कूल के जो होते हैं प्रिंसिपल वो भी आते थे. हाँ. ओनली Yes, दैट. yes. थोड़ा रिकॉल करो. मैम बीएड स्टूडेंट्स भी आते थे, लाइक जो लोग क्लास लेते थे और जिनका क्लास नहीं फ्री होते थे हाँ. वो लोग भी आते थे. फ्री होते थे, है ना. वो आपको लगता था एज ए स्टूडेंट के फ्री हो, सिर्फ वो आके बैठते थे. नहीं, वो लोग नोट ma'am. करते थे, लाइक वो मे बी लोग वो. note करते थे. यस. हाँ. So that was what they were performing the role. That's the peer assessment, है ना. बीएड में ये प्रैक्टिस सालों से हो रही है. ओके. जब भी स्टूडेंट लेसन दे रहा है, जैसे कि आपके साथ भी ये होगा, वी आर डूइंग पीयर असेसमेंट, है ना, वी आर डूइंग सेल्फ असेसमेंट ऑल्सो. तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि पीयर असेसमेंट, वो तो आपका क्लास चलो वो लेके चले गए, फिर उनके फ्रेंड भी चले गए, उनके सुपरवाइजर भी चले गए, वहां पे वो रोल खत्म नहीं होता है. एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल सिट इन अ ग्रुप. फिर क्या होता है, सुपरवाइजर आस्क द स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्जर्व देयर लेसन, नाउ गिव योर फीडबैक. तो जो बच्चे जो उनके फ्रेंड्स उनका लेसन ऑब्जर्व करने आए होते हैं, वो जो आप बोल रहे हैं ना लिखते हैं, तो उनको कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया दिए गए होते हैं, जो हम आपको भी देंगे कि कैसे ऑब्जर्वेशन करना है. जैसे कि उसने टीचर ने कोई एग्जांपल दिया कि नहीं, पहले तो ये चेक करना है. यस मैम. है ना. एग्जांपल दिया तो कितना रिलेटेड था. फिर जैसे कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा तो हाउ एप्रोप्रिएट इट वाज, है ना. टीचर ने कोई ब्लैक बोर्ड किया कि नहीं किया तो हाउ एप्रोप्रिएट इट वाज. तो ऐसे प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया उनको भी पहले से दिए जाते हैं. दैट वी विल प्रोवाइड टू यू आल्सो जब आप लोगों का टाइम आएगा, है ना. तो वो टीचर क्या करते हैं, दे ऑल सिट टुगेदर, देन we used to give the feedback. तो पहले सुपरवाइजर का फीडबैक हो, उससे पहले जो लोग ऑब्जर्व, 2 या 3 फ्रेंड जो ऑब्जर्व करने आए थे ना, दे गिव देयर फीडबैक ऑन दैट प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया जो उनको लगा, है ना. यस मैम. तो वो पीयर असेसमेंट हुआ. एंड देन आफ्टर टीचर गिव द फीडबैक. अभी क्या होगा, जब मैं फीडबैक देती हूँ, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट ने जो फीडबैक दिया दैट इज ऑल्सो माई पॉइंट, तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधा उससे लिंक करूंगी कि जैसे उसने बोला वो सही है. तो मेरा फीडबैक का रोल वहां पे क्या हो गया, थोड़ा रिंकी. यस मैम. माय फीडबैक का रोल क्या हो गया वहां पे. मैम आपकी आवाज क्लियर Hello? नहीं आ रही हो गया. हेलो, एम आई मुझे. यस ऑडिबल? मैम. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, okay. Yes, ma'am. See, Yes, ma'am. what I am trying to telling you कि जब जैसे कि 2 स्टूडेंट का फीडबैक खत्म हो गया और जब टीचर खुद अपना एक्चुअल फीडबैक देना शुरू करते हैं, तो जहाँ पे हाँ. उन्होंने जेन्युइन फीडबैक दिया है, we will start with that और we will relate that. उसको हम इतना फिर एलोबरेट करके फीडबैक नहीं देते. This is what I am telling you through our B.Ed experience, है ना. So Okay. B.Ed में तो ये प्रैक्टिस सालों से है. That Ma'am, students I are want doing to the ask. peer. Wait. Students are doing their peer assessment, even they are doing their self assessment also, ओके ओके. है ना. मैम Okay. मुझे ये पूछना था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक पार्ट है हमारे उसका. एक्चुअली मरियम ने मुझे लास्ट टाइम एक ऑडियो क्लिप भेजा कि ये जो मैं क्वेश्चंस मेरे हैं, मतलब उसमें क्या है कि
वो बोल रही थी कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो मुझे ये जानना था कि एक्चुअली इसकी नीड क्या है पीयर असेसमेंट की। क्या peer एक assessment सेकंड मैम, आई वांट टू टेल वन थिंग। मैंने ये बोला था कि इट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट असेसमेंट। इतना मरियम, इम्पोर्टेंट मतलब आपने ये कहा था कि ये कोई इतना नहीं है, इसको एक कॉन्सेप्ट मत बनाइए। सो मतलब ये मैंने एक पार्ट this is the approach. Wait, हाँ wait. It's good. Like मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अंदर अंदर भी interact करते हो, though we are on a online mode. So that's a good practice. Peer assessment, it is not like that. When we talk about assessment for learning, peer assessment and the self assessment आएगा ही आएगा. So yes, it is an important part. है ना? ओके मैम, यस है मैम, ना? Yes, Yes, ma'am. it is a concept that you people should understand, क्योंकि कल जाके आप भी ये peer assessment करने वाले हो, यस मैम। है ना? So whatever we are Ma'am, doing here, wait. See, all the concepts are important. ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, यहाँ पे से बीएड इज समथिंग लाइक डिफरेंट. मुझे एक चीज क्लैरिफाइड करने दो. अब तक आप जो पढ़ के आए हो और ये अभी जो पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स है ये, है ना? तो कई बार हम क्या करते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट, ये हर एक स्टूडेंट का होता है. जब मैं भी स्टूडेंट होगी, मेरा भी यही रोल रहा होगा कि हम क्या करते हैं, सेमेस्टर 1 में पढ़े, एग्जाम दिया, बात खत्म. होता है ऐसा, यस मैम। है ना? यहाँ Yes, पे yes, ऐसा yes. नहीं होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना? जो असेसमेंट मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो आप स्कूल में जाओगे, आपका इंटर्नशिप होगा, तब भी ये आएगा. जब आप मेथड क्लासेस में जाओगे, तब भी उसको रिलेट होगा. जो ह्यूमन डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि उसका पेपर दे दिया, बात खत्म. वो ह्यूमन डेवलपमेंट आप इम्प्लीमेंट भी करोगे, है ना? सो मैम व्हाटएवर. मुझे एक बात बोलनी है। एक मिनट, आई थिंक मरियम बोल रही है ना? हाँ 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 मरियम, एक मिनट. सो जो भी कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं इन किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, रिंकी एंड ऑल दी स्टूडेंट्स, प्लीज मेक इट क्लियर, ये सिर्फ आपको एज ए कंसेप्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता है. समवेयर यू आर यूजिंग दिस कंसेप्ट, है ना? वो आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा क्लास के अंदर. यस मैम। क्लियर? तो प्रॉपरली ma'am. समझना जरूरी है. ठीक है, ओके यस मैम, मरियम, इसीलिए मैम इतने डाउट रहते हैं मेरे। नहीं, कोई बात नहीं. वी आर हियर टू मैम, सॉल्व योर डाउट. यस मरियम. मैम मैंने ऐसा कहा था कि जो भी टेक्निक्स है, जो भी मेथड्स है, वो कब इवॉल्व होती है, जब कोई ना कोई असेसमेंट में कोई डिमेरिट होता है, तब दूसरी मेथड जाके अराइज होती है. सेल्फ असेसमेंट में कुछ खामियां रह गई होगी, तब जाके पीयर असेसमेंट अराइज हुआ होगा. मतलब मैंने कोई भी चीज. ओके मरियम, और व्हाटएवर एक आपका और जो चीज, भी मैम लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. और मैंने ये बोला था कि सबकी असेसमेंट होगा, सबका असेसमेंट होगा, फिर लास्ट में फॉर्मेटिव मार्क्स दिए जाएंगे या समेटिव मार्क्स मरियम, दिए आप जाएंगे. सही हो हर जगह। मरियम, मैं आप गलत सही हो, हूँ मैम? बस आपने जो ये पॉइंट बोला मुझे वो समझ नहीं आया कि इट इज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डोंट मेक इट अ कॉन्सेप्ट, वो मुझे नहीं समझ आया था, इसलिए मैंने मैम से क्लियर किया कि इसकी नीड क्या है। Maria and Rinki, don't go to one-to-one interaction. We are in a class of 80 students, so we have to take the care of the others also. Yes, See, ma'am. all concepts are important. Yes, if you have any doubts, you can straightforward ask to me. है ना? We are here to help you only. है ना? जब भी आपको कोई डाउट Yes, रहता है, ma'am. आप पूछ सकते हो. It's nothing wrong to ask or solve your doubt. और क्लास Yes, का ma'am. एनवायरनमेंट ऐसा ही होना चाहिए. यू ऑल्सो मेक इट क्लियर कि आपका क्लास का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही हो, जब स्टूडेंट को डाउट हो तो वो फ्रीली पूछ सके. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. कैन आई गो फर्दर? Yes, सॉरी ma'am. मैम. नहीं, it's not about sorry. It's not about sorry. Okay, so this is peer assessment. We have discussed a lot about the peer assessment. Now, when it take place,
है ना। पीयर असेसमेंट ज्यादातर कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, या ऐसे कौन से लर्निंग आउटकम्स होंगे जहाँ पे हम वी विल यूज द पीयर असेसमेंट. सो इफ वी वांट टू डू द पीयर असेसमेंट वी हैव टू फोकस ऑन द पीयर लर्निंग, है ना. सो पीयर लर्निंग जहाँ पे कोलैबोरेटिवली व्हेन द स्टूडेंट्स आर वर्किंग टुगेदर, at that time if you implement the same peer assessment it will give the best result to you, है ना. So there are the collaborative work in the classroom. Yes or no? Is there any collaborative work in the classroom? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Give me Yes, example of that kind of collaborative work when the peers are sit together, work together and learn together, जिसको हम cooperative learning भी बोलते हैं. Try to give me Ma'am, the like example of that. assignment models, like Group or maybe project, group discussion, Assignment, group group project. discussion. है ना, ग्रुप प्रोजेक्ट, डिस्कशन, असाइनमेंट, है ना, ये सारी चीजें ऐसी होती है. ग्रुप एक्टिविटी, पैर एक्टिविटी, है ना, जो टीचर्स देते हैं क्लास में, जैसे कि 3 बच्चों को साथ में चार्ट बनाने के लिए दिया, या कोई असाइनमेंट है जो हमने छोटे छोटे ग्रुप में डाल दिया, है ना. तो ऐसे असाइनमेंट, ऐसे ग्रुप वर्क आप देते हो, प्रोजेक्ट वर्क देते हो, तो उसको असेस करने के लिए फर्स्ट यूज द पीयर असेसमेंट ऑल्सो. जैसे कि हम आपको असाइनमेंट देते हैं इन अ ग्रुप, है ना, तो वो ग्रुप में क्या होता है, नाउ दे हैव वर्क टुगेदर, दे नो ईच अदर, है ना. नाउ दे आर आल्सो अवेयर ऑफ द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, so they can give the better feedback to each other and evaluate the others in a way. Informally तो हम करते ही है ये, am I right or wrong? Informally peer assessment take Yes, place when the like when the teachers make the activity in a group, or like when the teacher is giving the group assignment, or like the presentation जब भी होता है, और जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होता है, तो पीयर असेसमेंट नहीं होता है, वो एक दूसरे को असेस करते ही है ना, Yes, ma'am. है ना. Informally, yes, ma'am. इनफॉर्मली करते ही है ना. तो बिकॉज वी आर यूज टू डू दैट थिंग्स, है ना. तो पीयर असेसमेंट को हम फॉर्मली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले से स्टूडेंट्स आर अवेयर दैट predetermined criteria on the basis of which they are going to assess their peer, their classmates, which makes their understanding more clear about the concepts. क्योंकि क्राइटेरिया हम किसके आधार पे बनाएंगे, whatever we have taught in the classroom, है ना, और जो हम लर्निंग आउटकम्स लेना चाहते हैं उसके आधार पे ही हमारे क्राइटेरिया होंगे ना. ठीक है. सो पीयर असेसमेंट करने के लिए वी नीड दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी. हमको पीयर लर्निंग को भी प्रमोट करना पड़ेगा क्लास के अंदर. वी हैव लाइक दैट काइंड ऑफ लाइक ग्रुप असाइनमेंट है, ऐसी ऐसी जो फॉर्मेटिव चीजें हैं जिसमें वी कैन इन्वॉल्व द पीयर इन द असेसमेंट पार्ट, है ना. ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना. So these are some of the strategies in which the teacher can involve the students in the assessment part. Clear up to this? Clear up to this? है ना. अभी जब assessment करते हैं तो I told you predetermined criteria. It may be in the form of checklist, it may be in the form of rubrics, है ना. वो दोनों फॉर्म में हो सकता है. चेकलिस्ट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन हो रहा है, हमने लास्ट में भी वो लास्ट क्लास में भी वी हैव सीन दैट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश वाला कि राइटिंग हमको चेक करना है ना. तो वी हैव दिस सेट ऑफ क्राइटेरिया विथ अस बीइंग अ टीचर कि हम अगर उनकी राइटिंग स्किल चेक कर रहे हैं तो देयर आर सम सेट ऑफ क्राइटेरिया, है ना. तो वी विल पुट देम आइदर इन द चेकलिस्ट और इन द फॉर्म ऑफ द रुब्रिक्स, जो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं सम ऑफ द एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ कैसा होता है पीयर असेसमेंट. नाउ वी विल प्रोवाइड दैट checklist or rubrics or predetermined criteria to the students. We will tell them that how to use this checklist. checklist में तो बहुत सिंपल है कि उनको राइट और रॉन्ग करना है, ये था ये नहीं था, ये था ये नहीं था, ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल प्रोवाइड द फीडबैक, ओरल फीडबैक और रिटर्न फीडबैक, है ना. दोनों हो सकता है, बोथ काइंड ऑफ फीडबैक विल बी देयर in the peer assessment. Clear?
तो ये कैसे होता है, लेट मी शो यू सम ऑफ द एग्जांपल, then I will discuss that how does peer assessment facilitate and improve the learning. देखो, this is one of the peer editing checklist regarding the essay, है ना। तो दो पार्ट में इसको चेकलिस्ट बनाया है, the content which the student have used in the essay and the organization of that content, ठीक है। तो कंटेंट के अंदर सीधा लिखा है मेन आइडिया इज क्लियरली स्टेटेड इन द इंट्रोडक्शन, है ना। तो जैसे कि ये पूरा एक चेकलिस्ट है, वी विल प्रोवाइड दिस चेकलिस्ट टू द स्टूडेंट्स, वी विल explain that how to use this checklist, and on the basis of this they will assess the written essay of their peers. Clear? This is one of the example, है ना। जैसे कि main idea is clearly stated, अगर उनको लगता है स्टूडेंट को तो they will say yes or no. Main idea is illustrated by several points, है ना। तो एग्जाम्पल का भी रोल है टू इल्यूस्ट्रेट, उनको लगेगा तो यस और नो करेंगे. ईच पॉइंट इज सपोर्टेड बाय कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, है ना. irrelevant, ambiguous or unclear ideas or examples are included. So both the points are here, है ना. Now try to understand. जब हम ये प्री-डिटरमाइन क्राइटेरिया उनको दे रहे हैं, है ना, स्टूडेंट खुद भी तो समझेंगे ना कि ऐसे लिखने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए. Yes or no? Hello? Yes, ma'am. Motive behind this assessment. हाँ, that is the motive. See, when they see that main idea is stated in the introduction, so student will learn, will understand that to write the essay, introduction should be there. They will learn that main idea is illustrated, है ना. तो to illustrate our points, to put our points, we can give the examples. तो जब जैसे कि हो सकता है कि टीचर ने जब सिखाया कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तब शायद बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी तो उनको ये टास्क करना ही है. तो क्या करेंगे? फर्स्ट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द ईच पॉइंट विच इज प्रोवाइडेड टू देम, है ना. ईच पॉइंट इज कवर्ड. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एसे, नॉट ओनली द कंटेंट, है ना. So they understand that whatever my content in the essay, I have to put that content in a very organized manner, है ना. That should be a title of my essay. तो ये सारी चीजें वो वापस से इन डेप्थ में अंडरस्टूड करेंगे कि नहीं करेंगे when they are doing the assessment. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Absolutely. So in a way, मैंने ये बोला था ना, how does peer assessment facilitate improve? So don't you think when they are doing this kind of thing, it's going to help them to learn this particular learning, that how to write the essay? Yes, ma'am. It will. है ना. So in a way, there it facilitate the learning or not? Facilitate. ma'am. ना? Okay. Then this is another example. Evaluation done by. This is the peer evaluation of presentation. ये written form का था, ये presentation का था. Again, it is a checklist. जैसे कि हम कुछ छोटा टॉपिक दे दिया साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट में कि कल आपको इनके ऊपर प्रेजेंटेशन करना है बच्चों को, है ना. तो जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके पीयर्स असेस करेंगे उनको, तो दे विल आल्सो अंडरस्टैंड दिस शुड बी देयर इन माय प्रेजेंटेशन आल्सो. यस और नो? वाज द प्रेजेंटेशन क्लियर? प्रेजेंटेशन क्लियर था, उनको लगेगा यस तो करेंगे, उनको लगेगा नो तो नो करेंगे. वेर यू इंटरेस्टेड? आप इंटरेस्टेड थे जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा था, है ना. कुड यू हियर व्हाट द प्रेजेंटेशन वाज सेइंग? ठीक है. Was the presenter confident in what they were saying? Did you learn something? Was there anything you were confused about? है ना. Then यहाँ पे तो ये written form में भी लिखा है. What part of the presentation were you particularly impressed with? ठीक है. What area do they need to develop? तो ये क्या हुआ? Written feedback हुआ. So this is also one of the example of peer evaluation.
ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ रूब्रिक्स व्हिच आई एम टेलिंग यू, है ना। जब रूब्रिक्स आएगा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन रूब्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली क्या था, चेकलिस्ट था। रूब्रिक्स में उसका ना शॉर्ट एलोब्रेशन होता है हर एक कंसेप्ट का, एंड दिस इज वेट, this is the rubrics about the letter writing, है ना। This is Ma'am, also one hello. of the part. हाँ, yes, Ma'am, are you sharing your screen? yes, my screen is visible. I cannot see, so I want to know if others can see or it, Now, it now is it's the problem visible. with. Yes, yes. Now No, we it can is see the visible, rubric. ma'am. It Okay, is so visible. I have problem. हाँ, because It was I visible. have today I have login from 2 accounts, so I can see on my other device कि it is visible. अच्छा, तो I must be having some net. हाँ, because in Microsoft Team में there is one that if you do not have that better bandwidth, है ना, so you might face. Now is it visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. ठीक है, so this is the example of rubrics, है ना, and rubrics about what? Letter writing. Now we all have learned this letter writing in our English, है ना। एक letter लिखने को आता था और उसका एक फॉर्मेट होता था, है ना। अभी उसको लेटर राइटिंग को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूब्रिक्स। तो यहाँ पे कैटेगरी है कि ये कैटेगरी हर एक उसमें होनी चाहिए। वन इज सेंटेंस एंड पैराग्राफ, ग्रामर एंड स्पेलिंग, सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग, कंटेंट एक्यूरेसी एंड द आइडिया। अभी व्हेन आई से दैट सेंटेंस एंड पैराग्राफ, तो उसको भी 4 लेवल पे डिवाइड किया है। जैसे कि हम नहीं बोलते हैं वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड, ये बोलते हैं ना। तो व्हाट डज मीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। तो ये जो 4 है ना, 4 3 2 1, इट शोज द लेवल ऑफ दीज कंटेंट, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, हाउ efficiently the student have used that. जैसे कि लेवल 4 पे आप रीड करो अबाउट सेंटेंस एंड पैराग्राफ. So when we say that sentence and paragraph should be there in the letter. So 4th number का है तो वो क्या है, ये sentence and paragraph are complete, well constructed and of varied structure. ये highest level denotes करता है. See the first level. Many sentence fragment or run-on sentence or paragraph needs lots of work. है ना? So what the students will do? When they are evaluating, they will learn in depth about each categories and each level. Yes or no? They will learn themselves Yes, also. ma'am. है ना? कि when I am saying Yes, ma'am. that grammar and spelling, तो highest category, highest level क्या है? Writer makes no error in grammar or spelling. So जो भी लेटर स्टूडेंट्स ने लिखा है, not a single error is there. If you find this, give that the 4 level, है ना। थर्ड लेवल क्या है? राइटर मेक्स 1 or 2 error in grammar and spelling. 1-2 लेवल आपको 1-2 मिलती है उसमें, है ना। वो क्या ग्रामर, तो आप you say that particular student in grammar and spelling is at 3rd level. Clear? If writer makes 3 or 4 error in grammar or spelling, तो put that student, particularly this category grammar and spelling, in 2nd level. Clear? So कौन से student को किस category के लिए कौन से level में रखना है, ये करने से पहले student need to understand these also. Clear or not? So this is one of the example of the rubric. जो मैंने बोला ना कि सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ पीयर इवैल्यूएशन में ज्यादातर भी यूज द चेकलिस्ट एंड द रूब्रिक्स. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेकलिस्ट. सिंपली दे विल चेक yes or no, है ना. बट इन अ रूब्रिक्स दे विल लाइक बहुत शॉर्ट में उसको हर एक कैटेगरी को लेवल वाइज एलोबरेट किया जाता है और अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स विल इवैल्यूएट देयर ओन क्लासमेट्स. Clear up to this? Hello, ma'am.
Yes. Ma'am, do we have to give this checklist or rubrics before only to the students? Yes, it's better. Okay, ma'am. On the same day we are not providing them na. हाँ. It depends on the teacher, but it's better आपने अगर उनको पहले से दिया गया है तो they should also like they, क्योंकि assessment for learning में वही तो important है. सारी चीजें क्यों छुपा के रखनी है? Let me show these things. इसीलिए ये 3 चीजें बहुत important है. Where the learner is going, where the learner is now, how can the learner get that? है ना? Assessment for learning में हम यही बोलते हैं कि our learner should be aware of the learning outcomes. है ना? इसलिए मैंने अपने क्लास में बोला था कि अभी की टेक्स्ट बुक देखो. In the beginning of each chapter, well defined learning outcomes are there that students are also aware of कि after completing these chapter what they are going to be learn. है कि नहीं? लेकिन कई बार क्या होता है, when we are not involving them in the assessment part, they will take it very easy. हमने चाहे जितना उनको elaborate किया है, but जब उनको ये role perform करना है, to perform this role they will also learn it again. Clear? This is one more Yes, example Yes, ma'am. of peer evaluation form. है ना? Write the name. यहाँ पे name लिखेंगे, class period, है ना? Was dependent, ये group activity का है, जिसमें यहाँ पे 1 2 3 लिखा है ना, वो स्टूडेंट का नाम होगा 1 2 3, और यहाँ पे लिखा है वैल्यू, strongly agree, agree, disagree and strongly disagree. ठीक है? So this is also one of the example of peer evaluation. These are some of the tools, online tools which the teacher can use for peer evaluation. ये हम अपने आप बना सकते हैं, ये टीचर को डेवलप करना होगा. Now it depends on टीचर कैसे कर सकता है. So teachers is aware of the learning outcomes, है ना? On the basis of the learning, on the basis of the activity, जो learning outcome आप चाहते हो, accordingly you prepare your checklist or the rubrics. These are some of the online tools which a teacher can use for the peer evaluation or the self evaluation. कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको डिटेल में ये दिखाऊंगी कि कैसे यूज किया जाता है इसको. Clear up to this peer assessment? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I tried to give you the examples also, so you should be aware of what kind of examples are there. ठीक है, अभी टाइम हो गया है, so I think in the next period I can begin with the self assessment. Is there any doubt about the peer assessment and how you are going to do it? अभी आप अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा peer assessment डेवलप कर सकते हो, Yes, ma'am. है ना? Try Yes, to ma'am. do that things. Now you all have selected your method. आपको पता है, जैसे कि मेरा मेथड, मेरा अकाउंट है, कॉमर्स है ना? एक ऐसा टॉपिक लो जिसमें आपका मास्टरी हो, है ना? उसके आधार पे यू फ्रेम वन एक्टिविटी, ग्रुप और पीयर एक्टिविटी, है ना? और उसके आधार पे ट्राई टू मेक एटलीस्ट चेकलिस्ट तो आप बना ही सकते हो ना, है ना? छोटा सा, चाहे इसमें 5 या 6 स्टेटमेंट हो, तो एक पीयर असेसमेंट का ऐसा सीट बनाने का ट्राई करो. ठीक है? Clear? Okay, ma'am. Sure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Don't leave the class. Let me download the attendance sheet. Okay, so I have downloaded. So in the next class, self-assessment. Now what I will do in the next class की हमारी मोडालिटी थोड़ी डिफरेंट होगी. अभी देखो फ्राइडे तो आपका छुट्टी है ना, क्रिसमस का, ठीक है? तो डायरेक्टली अपना मंडे को क्लास आएगा, सो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम.
I will give you one guideline for self assessment, है ना? So self assessment को मैं नहीं पढ़ाऊंगी. I will discuss that thing. So उससे पहले Monday से पहले I will share that guideline with you. Try to learn or understand the concept of the self assessment, है ना? And we will discuss on Monday. So Monday I will solve only the doubts. आपने जो पढ़ा आप में उसमें से आपको क्या डाउट्स लगा? Clear? Yes, ma'am. Yes, sir. Clear everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Is there any doubt? No No. doubt. No doubt. No, ma'am. हम ना थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको आपके साथ ना एक लिंक भी शेयर करूंगी, जब आपने अब तक जितना पढ़ा है ना? एक वीडियो है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेट, मेरा ही वीडियो है. वीडियो देखते देखते बीच में आपको क्वेश्चन आएंगे, वो आपको अटेम्प्ट करना है, एंड दैट्स द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. So I will share that Yes, link ma'am. with you. हाँ, that how the teacher can do the formative assessment. है ना? ठीक है? So I will share that video. Try to do that activity. उसमें मेरा कुछ रोल नहीं है, आपका रोल होगा. Clear? So see you soon. Yes, sir. Monday. Take care. Thank you, ma'am. Good night. Bye everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you. And happy Christmas to advance. Same to you. Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas. ma'am. Merry Christmas. Bye everyone. Please take care. Now I am ending this meeting here. Good day, ma'am. Good day. Bye, ma'am.